Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear ones. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty and doing your work in a best way. Students, in our previous lecture we have completed question number 3 to 10. Now move towards the question number 11, that is perform the following divisions. Students, we have to perform divisions of the given questions. So you can see that the part number, I'm going to explain part number 3, part number 1 and part number 2 is in your homework. Let's move towards the part number 3, that is 112 divided by minus 7. Now here you can see the solution, that is 112 divided by minus 7. Students, we can write 112 divided by as the division sign as it is, minus 7 here in the form of numerator and denominator. Above value is called numerator and below value called denominator. Now you can see that if we cancel the value, as 7 ones are 7 and 7 ones are 7, 4 will be carry here, it would become 42 and 7 6 are 42. Minus sign will remain as it is and the answer of the division 112 minus 7 is minus 16. Part number 4 is, you can see here the solution, that is minus 231 divided by minus 11. Students, we can write it as in the form of numerator and denominator, as minus 231 is numerator and minus 11 is denominator. Students, as division process is applying, so minus and minus will be cancelled and 11 ones are 11, also 11 twos are 22. 1 will be carry here, 1 will be carry here and it would become 11, which shows 11 ones are 11 and the answer is 21. Question number 12 is fill in the blanks. Part number 1 is 2 multiplied by 3 plus dash is equal to 2 multiplied by 3 plus 2 multiplied by minus 3. We can see that here is distributive property of multiplication over addition. Students, we know that distributive property में हमने देखा था multiplication और division दो process apply हो रहे हैं. It means ये two inner value, both inner values के साथ क्या होगा, multiply होगा. So here you can see that 2 यहाँ पे 3 से multiply हो रहा है, plus sign as it is, and 2 is also multiplying to minus 3. सो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, -3 होगा. क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस एज इट इज़ ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3. सो हेयर द आंसर विल बी -3. पार्ट नंबर 2 इज़ -3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस डैश इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 5. स्टूडेंट्स, यहाँ राइट हैंड साइड पे जो आंसर है, जो वैल्यू मेंशन है, वो है -3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब यहाँ पे हमारे पास -3 सो गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें जिसकी वजह से जो आंसर हो सॉल्व करने के बाद वो 5 हो. फिर बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी. यहाँ पे भी -3 मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए, अगर यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 5 है. सो इफ़ वी राइट हेयर द नंबर 9, so you can see that minus plus will be minus, and also if we solve it then the answer will be 5. स्टूडेंट्स, आंसर जो है वो पॉजिटिव 5 ही होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है. -4 और +9 को सॉल्व करने से आंसर हमारे पास 5 होगा. सो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 5, बोथ आर इक्वल. Now part number 3 is -11 multiplied by 7 plus 2 is equal to -11 multiplied by 7 प्लस -11 मल्टीप्लाई बाय डैश. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई हो रही है. -11 ये स्टूडेंट्स -11 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, -11 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड ऑल्सो -11 इज़ मल्टीप्लाइंग टू 2. और सो हेयर विल बी द आंसर 2. स्टूडेंट्स, -11 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 इज मिसेस अहमद वाज बोर्न इन 1998 एंड डाइड इन 1971. हाउ लॉन्ग डिड शी लिव. स्टूडेंट, मिसेस अहमद की डेट ऑफ बर्थ भी गिवन है और डेट ऑफ डेथ भी गिवन है, और हमने ये बताना है हाउ लॉन्ग डिड शी लिव. हेयर यू कैन सी द सॉल्यूशन, डेट इज, स्टूडेंट्स
सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, और वो डाटा क्या है? मिसेस अहमद वाज बोर्न इन 1898, मिसेस अहमद डाइड इन 1971। अब हमने एज डिफरेंस बताना है। एज डिफरेंस फाइंड करके हमें ये फाइंड कर सकते हैं हाउ लॉन्ग डिड शी लिव्ड। सो स्टूडेंट्स, एज ऑफ मिसेस अहमद फाइंड कैसे करेंगे? We will subtract 1971 larger value to smaller value. So 1971 minus 1898, the answer will be 73 years, which shows that Mrs. Ahmad lived 73 years. Question number 14 is the Greek mathematician Eratosthenes was born in 276 BCE and died in 194 BCE. Find how long he lived. Students, BCE stand for before common era. Now here you can see that the data given in the question is Eratosthenes was born in 276 BCE and Eratosthenes died in 194 BCE. Now we have to find the age of Eratosthenes. That is, we have to subtract 276 and 194. So now subtract 194 from 276, then that age will be 82 years. Hence Eratosthenes lived 82 years. So I didn't write it here as. Now it's cleared. Hence Eratosthenes lived 82 years. Now the question number 15 of the exercise 5b is at noon on a certain day in Hunza the temperature rose to 11 degrees Celsius above zero. At midnight the temperature fell to 5 degrees Celsius below zero. Find the change in temperature. Students, हुंजा एक वैली है और वहाँ का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 11 डिग्री सेल्सियस जो कि मेंशन है यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस होते हैं जो कि ज़ीरो से अबव है, और मिडनाइट पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ का वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाते हैं और टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस। सो हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट द सॉल्यूशन टेम्परेचर एट नून, जो दिन के टाइम टेम्परेचर होता है वो कितना गिवन है? 11 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर एट मिडनाइट इज़ -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस क्यों आएगा? यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस क्यों आएगा? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि मिडनाइट जो टेम्परेचर होगा वो बिलो देन ज़ीरो होगा, मीन्स के ज़ीरो से कम होगा। सो ज़ीरो से कम हमारे पास जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो फिर माइनस में होगा। डेट्स वाई आई हैव राइटेड है -5 डिग्री सेल्सियस। Now change in temperature that we have to find. How we can find? Student, change in temperature हम कैसे find करेंगे? 11 डिग्री सेल्सियस में से हम -5 डिग्री सेल्सियस मीन्स के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस को। सो इन दोनों टेम्परेचर का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, चेंज फाइंड करें, सो आप देख सकते हैं 11 डिग्री सेल्सियस हमारे पास पॉजिटिव में है और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -5 डिग्री सेल्सियस को। सो -5 डिग्री सेल्सियस, एज वी नो डैट इफ बोथ माइनस साइंस आर मल्टीप्लाइंग देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस। सो 11 + 5, the answer is 16 degree Celsius, which shows that change in temperature is 16 degrees Celsius. Students, we have completed our exercise 5b. Now move towards the multiple choice question 5. Select the correct answer from the given option. Number 1 is on the number line which is greater -15 or -3. Option A -15, option B they are equal, option C -3 and option D none of the above. स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे अगर हम बोथ नंबर्स को -15 को और -3 को रिप्रेजेंट करें, -15 बड़ा होगा या फिर -3? स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नंबर लाइन देख सकते हैं और हमें जो फाइंड आउट करना है -3 और -15 इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। एज वी नो डैट अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करें, सो लेफ़्ट साइड पे मूव करने से
जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो एक्चुअली में उतना बड़ा नहीं होता, उसके साथ माइनस का साइन मौजूद होता है, विच शोज दैट नंबर इज स्मॉलर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास -3 जो नंबर है इज़ ग्रेटर देन -15। अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करें तो हमारे पास जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो नंबर डिक्रीज़ होते हैं। That's why -15 is smaller and -3 is greater. So let's see the correct answer. Now students, the option C is correct as it is -3. Now second one is arrange these numbers in decreasing order: -25, +23, +3, -12 and 0. Students, इन नंबर्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स के बड़े से छोटे की तरफ, सबसे पहले हम लार्जर नंबर लिखेंगे जो सबसे बड़ा है, देन उससे स्मॉल स्मॉल एंड सो ऑन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन ए -12 इज़ ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन 0, क्या ये अरेंजमेंट होगी? ऑप्शन बी -25 लेस देन -12 लेस देन 0 लेस देन +3 एंड लेस देन +23, और सी ऑप्शन +23 +3 0 -12 and -25, and option D 2 of the above. Students, 2 of the above means option B and option C. Here you can see that the larger number in the sequence is 23. 23 से जो smaller number है वो कौन से है? +3. Both have the positive sign. और +3 से जो लेस नंबर होगा वो कौन सा होगा? 0 होगा, और 0 से अगर लेस नंबर होगा सो -12 होगा, -25 नहीं होगा। माइनस में जो नंबर जितना स्मॉल होता है वो उतना ही लार्ज होता है, और जो लार्ज नंबर होता है वो स्मॉल ही होता है। सो स्टूडेंट्स, -12 के बाद जो अरेंजमेंट होगी वो -25 होगा। अगर आप इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करें सो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? हाई से लो की तरफ, मीन्स के राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। सो राइट पे हमारे पास जो नंबर होगा वो 23 होगा, 23 से बैकवर्ड मूव करेंगे तो 3 होगा, 3 से बैकवर्ड मूव करेंगे 0 होगा, 0 से बैकवर्ड मूव करेंगे -12 होगा, -12 से बैकवर्ड मूव करेंगे 25 होगा, -25। सो लेट्स सी, ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, 23 3 0 -12 एंड -25 अरेंजमेंट हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये जो लेस देन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, -25 छोटा है, स्मॉल है -12 से, येस इट इज़ करेक्ट। ऑल्सो -12 इज़ स्मॉलर देन 0, येस 0 इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन +3, येस, एंड +3 इज़ स्मॉलर देन +23। सो सी अनदर ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 23 3 0 -12 एंड -25, ये यहाँ पे हमारे पास लार्जर वैल्यू है और देन स्मॉलर वैल्यूज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज -33 -22 -11 डैश एंड डैश। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो दो इंटीजर्स मिसिंग हैं वो फाइंड आउट करने हैं। द नेक्स्ट टू इंटीजर्स इन द सीक्वेंस अबव आर। इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टू इंटीजर्स होंगे वो कौन से होंगे? ऑप्शन ए +11 +22, ऑप्शन बी +11 0, ऑप्शन सी -1 0, and option D 0 +11. Here you can see that the difference is of 11. Students, let's represent it on a number line just to understand the next two integers. स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास -11 का डिफरेंस है, अगर हम -11 से आगे भी -11 का डिफरेंस लें, मीन्स -11 -11, सो यू कैन सी हियर -11 विल बी एज इट इज़ एंड इट वुड बिकम +11, माइनस विल बी प्लस, so the answer is 0. नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और अगर उससे भी नेक्स्ट फाइंड करें, सो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए 0 माइनस -11 का डिफरेंस हम लेंगे, सो माइनस विल बी प्लस 0 + 11, और आंसर हमारे पास किसके इक्वल होगा? 11 के इक्वल होगा, मीन्स कि उससे नेक्स्ट इंटीजर 11 होगा, which shows option D is correct as it is 0 and +11. Here will be 0 next integer and +11. Next one is the number 0 lies to the right of -25. Which of the following statement are true? Students, -25 जो है नंबर वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, और 0 जो है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है -25 के। अब
अब हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए -25 इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स -25 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेट्स सी अनदर ऑप्शंस ट्रू। ऑप्शन बी 0 ग्रेटर देन -25। ऑप्शन सी माइनस मल्टीप्लाई बाय -25 ग्रेटर देन 0, which means +25 is greater than 0. And option D is none of the above is true. As we know that 0 is greater than -25, and it can also be say it as -25 is less than 0. So students, हमारे पास ऑप्शन ए में मेंशन है -25 greater than 0. No, -25 is not greater than 0. And the next one is B. ऑप्शन बी 0 इज़ ग्रेटर देन -25। स्टूडेंट्स यहाँ 0 जो है वो -25 से ग्रेटर है। सो यस, 0 -25 से ग्रेटर है। ऑप्शन सी में मेंशन है अगर माइनस माइनस प्लस हो जाए तो +25 ग्रेटर देन 0। क्या +25 ग्रेटर देन 0 है? स्टूडेंट्स +25 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन हमें किसके बारे में बताना है? -25 का बताना है और 0 का। सो इट मीन्स द ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच शोज 0 इज ग्रेटर देन -25. नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 इज ऑप्शन ए -12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी -18 एंड ऑप्शन डी 12. Let's see the solution. As students, you can see here, we will solve first multiplication and then subtraction. So by multiplying 5 to 3, the answer is, by multiplying 5 to -3, the answer is -15. Students, minus minus will be plus and 3 as it is, and minus plus will be minus, which means by subtracting the answer is 12. And और जो और बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए इसके साथ भी साइन माइनस का होगा। सो आंसर हमारे पास -12 है, विच मीन्स ऑप्शन ए -12 इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज 6-1. Next one is, here is a table that you can see. Here are the names and here are the numbers. First one is integers 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3, -4 and so on. Negative integers are -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Positive integers are 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Non-negative integers are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Look at the table above that we have seen. Which of the given statement is false? Students, हमने बताना इनमें से कौन सी statement correct नहीं है, false है. Option A, non-negative integers are same as the positive integers. So students, हम इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स जो नेगेटिव नहीं है, मीन्स वो भी पॉजिटिव होंगे. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. और ये दोनों क्या है, सेम है. 0 नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. सो और दोनों इनफाइनाइट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन बी. ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर्स. स्टूडेंट्स, हमें पता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन है, लार्जर देन है नेगेटिव इंटीजर्स के. मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. Option C, all the 4 categories have infinite numbers. फर्स्ट कैटेगरी इनफाइनाइट नंबर है, सेकंड भी इनफाइनाइट है, थर्ड वन और फोर्थ वन, ये 4 सीरीज इनफाइनाइट नंबर्स हैं, डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. एंड ऑप्शन डी 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. स्टूडेंट्स, हमें पता है 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ फॉल्स. ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी इज़ फॉल्स. Seventh one is the product of more than 2 integers of unlike signs. Unlike signs which have not same signs. Students, जिनके साइन सेम नहीं होते उन्हें हम unlike sign कहते हैं. So अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स का और जिनके साइन unlike हो, so let's see what will be the answer. ऑप्शन ए इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, तो उनका प्रोडक्ट जो है क्या वो नेगेटिव इंटीजर होगा ऑलवेज. और ऑप्शन बी इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. ऑप्शन सी इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. लेट्स सी एन एग्जांपल. स्टूडेंट्स, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं.
हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स हैं। यहाँ पे मैंने मोर देन 2 मीन्स 3 इंटीजर्स मेंशन किए हैं। +1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय +1। स्टूडेंट्स ये साइन जो है वो अनलाइक साइन है, सेम साइन नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलाइक साइन की एग्जांपल मैंने दी है। और +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास -1 होगा, +1 एज इट इज़। ये दोनों अनलाइक साइंस हैं। अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें +1 से, तो आंसर हमारे पास क्या आया है, -1 आया है। विच शोज दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट एज इट कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटीजर ही होगा इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस मौजूद हो। विच मीन्स स्टूडेंट्स जो नेगेटिव साइन है वो ऑड नंबर्स में आए। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option 8. Next one is the illustration shows the distributive law of multiplication. Here you can see that 5 multiplied by 3 plus 2. Students अगर हम इसको सॉल्व करें, so we know that 3 plus 2 is equal to 5 and 5 multiplied by 5 will be 25. Is either equals to 5 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 2. अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें 5 और 3 का, तो आंसर हमारे पास होगा 15। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 15 और 10 को अगर स्टूडेंट्स हम ऐड करें तो आंसर 25। 25 इज इक्वल टू 25। लेट्स सी ऑप्शंस दैट आर ए false, option B not always true, option C true, and option D distributive law works with subtraction 2. So students, we know that 25 is equal to 25, which shows that option C is correct. Now ninth one is associative law. X plus y plus z is equal to x plus y plus c, or a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. Option A true for addition and multiplication, option B true for addition only, option C false, option D true for multiplication only. स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ट्रू है। एडिशन के लिए भी ट्रू है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स है, मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एज इट कंटेन्स ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Next one is the value of -8 minus -8 is option A 16, option B 0, option C -64, option D 64. स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करें -8 और माइनस माइनस किसके इक्वल होगा, प्लस के इक्वल होगा, विच मीन्स -8 + 8 इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज 0 and it is correct. Okay students, we have completed our exercise 5b and also multiple choice. To practice of question number 11, 12, 13, 14 and 15 and do homework of question number 11 part number 1 and 2. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.